Now, Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya has courted controversy by making a contentious remark on Hinduism while addressing a political rally in Delhi. In his speech, SP Maurya has stated, and I quote, "Hindu ek dhoka hai." RSS chief Mohan Bhagwat has said twice that there is no religion called Hindu, but instead it is a way of living. He has further hit out at Prime Minister Modi, saying, and I quote, "PM has also said that there is no Hindu religion." What is interesting is that yet another India bloc leader has spewed on Sanatan Dharma, yet the alliance remains mum as far as condemning these remarks are concerned. Now, before we delve into this discussion, let's listen into what Swami Prasad had said. हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। Well, of course, viewers, there you heard it, the comments that have been made by SP Maurya. My colleague Abhishek Singh joins us on the broadcast to give us more on this. Abhishek, what more details can you share with our viewers? Yeah, Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya has again quoted a controversy about Hindu and Sanatan. Earlier also he has said many comments about Sanatan, about Bhagavad Gita. And now in addressing a political meeting, he has quoted that Hindu ek dhoka hai. He also correlated this with RSS chief Mohan Bhagwat once said that Hindu is not a dharma, instead it's a living. He also quoted Pradhan Mantri Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi, that Hindu is not only a religion. Further, he added that sentiments don't get hurt when these people make such statements. But if Maurya says the same, it causes unrest. Previously, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stallion's son, Udayanithi Stallion, made the headlines after he compared Sanatan Dharma with dengue and malaria. And this is not the first time when Swami Prasad Maurya created a controversy after saying something about Hinduism and Sanatan. Right, absolutely, Abhishek. And this is in fact, after Udayanithi Stallin's Sanatan Dharma remark, Senthil Kumar S.'s Gaumutra remark in the Lok Sabha chambers, recently made statement by Dayanidhi Maran on the Hindu cleaning toilets, and now we have SP Maurya now making the statement that Hindu is not a religion, and in fact, has the India bloc, has anyone in fact from the India bloc said anything on this? No, not yet, but speculations are there that Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, in a meeting day before yesterday called to be the Brahman Mahapatra Sammelan, he has said that Swami Prasad Maurya should not say these things. But they have not confirmed the statement, and Samajwadi Party leader are still not saying anything about it. But the Brahmin leaders of Samajwadi Party are again and again making statements about Swami Prasad Maurya and his statements about Hinduism and Sanatan Dharma. All right, so what we are being given to understand is that the India bloc is largely mum on these statements that have been made. My thanks to Abhishek for joining us on the broadcast and giving that update. Meanwhile, we have some reactions pouring in. Let's take a look at what Swami Chakrapani Maharaj has said. बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। हिंदू विरोधी बयान उन्होंने दिया, कहा है कि हिंदू एक धोखा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप का घड़ा भर चुका है। अब उस घड़े पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं
आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब जल्द बुलडोजर चलाए। आखिर कब तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इतने दिनों से विश्व वमन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से प्रमोशन उनका कर दिया हिंदुओं के खिलाफ बोलने के। और अब मुख्यमंत्री से आशा है, हम चाहते हैं कि पाप का घड़ा इनका भर चुका है, अब इस पे बुलडोजर चलाया जाए और इनको इनकी पूरी संपत्ति को सील किया जाए। यह उत्तर प्रदेश की जो धरती रामकृष्ण की धरती है, यहाँ हिंदुओं की टैक्स के पैसे से गाड़ी उनको मिली हुई है, उनके आवास मिले हुए हैं, सरकारी आवासें कौन देता है? क्या पाकिस्तानी देते हैं ला करके इनको? तो ये पाकिस्तान की और जो है अलगाववादी और कट्टरपंथियों के एजेंडा जो लेकर चल रहे हैं, तो नाम तो स्वामी प्रसाद है लेकिन काम मौलाना का कर रहे हैं और नफरती मौलाना का कर रहे हैं। नाम तो स्वामी प्रसाद मौर्य है, काम जो है उसामा बिन लादेन वाली कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, इन पे अब कार्रवाई होनी चाहिए, अब इन पे तत्काल बुलडोजर चलनी चाहिए। आखिर बुलडोजर उत्तर प्रदेश में है किस लिए? तो इसलिए मेरा मानना है अब बहुत हो चुका, कभी सनातन, कभी हिंदुत्व, कभी जानबूझ करके आप रामचरितमानस को उठाते हैं। तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई बुलडोजर चलने की प्रतीक्षा है। जल्द से जल्द मुझे विश्वास है कि योगी जी इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इसके अलावा सवाल ये कि तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, उन्होंने बोला है कि आजकल हम ये देख पा रहे हैं कि जो लीडर्स हैं वो कुछ क्षण के फेम के लिए जो है इस तरह से जो रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, धार्मिक भावनाएं होती हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं। और उन्होंने राहुल गांधी से भी सवाल पूछा है कि आप बताइए आपका रुख क्या है। हाँ, बड़ी के कविता जी की बात बिल्कुल सही है, सत्य है कि आप देखो कि एक फैशन सी हो चुकी है कि कोई भी हिंदू सनातन के खिलाफ कुछ भी बोल देता है और बोलने के बाद सबसे बड़ी बात उसकी पार्टी या उसके समर्थित जो गठबंधन है उस पर मौन हो जाते हैं। अभी कोई ऐसी बात होती जहाँ पे राजनीतिक है तो देखो तुरंत जो है प्रियंका जी, राहुल जी फाड़ बात करके दौड़ने लगते हैं, सड़क पुलिस से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन हिंदू सनातन का अपमान होता रहता है और ये ऐसा लगता है कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनका एक जो गठबंधन है वो एक सिंडिकेट है और ये सामूहिक एक गिरोह है और जो एक दूसरे को काम बांट दिया है कि तुम हिंदुओं को गाली दो, एक कहता है कि हिंदुओं को अपमानित करो, एक कहता है तुम मुस्लिम का तुष्टीकरण करो, एक कहता है तुम ईसाई की तुष्टीकरण करो और उनके क्रिमिनलों, उनके अपराधियों, उनके कट्टरपंथियों को महिमा मंडित करो, दूसरी तरफ तुम हिंदुओं को गाली दो। तो ये सिंडिकेट बन के काम करते हैं। अभी एक चोरी करता है, दूसरा उसकी पैरवी करता है, उसी में एक वकील बन जाता है, लड़ने के लिए टीवी पे आ जाते हैं बचाव करने के लिए। तो ये इनका ये गिरोह है। ये गिरोह जो है हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, जो निश्चित रूप से देश की जनता इनको देख रही है और इनको सबक सिखाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं हिंदू सनातन के खिलाफ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उनके बयान जो कि कविता जी हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। सर, सवाल ये है कि सुखबीर बादल जो कि एक सिख नेता हैं, पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि देश में 18% मुस्लिम है लेकिन वो यूनाइट नहीं है। हमारी जो जनसंख्या है वो 2% है, लेकिन हम एक ही अकाल तख्त साहब के नीचे जो हैं हम यूनाइट हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं तो यूनाइटेड सुखबीर बादल जी आखिर ये इतना दुखवीर क्यों बन रहे हैं? क्यों एकजुट करने की बात कर रहे हो? एकजुट करके तो देख लिया। जब इस तरह चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की नीति होती है और सुखबीर बादल जी चाहते तुष्टीकरण करके उनको एकजुट करके क्या करना चाहते हैं? क्या अलग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या अलग बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? क्या अफगानिस्तान वाली स्थिति लाना चाहते हैं कि भारत में शक्ति प्रदर्शन करा करके यहाँ पे शरिया कानून लागू करना चाहते हैं कि गजवा हिंद बनाना चाहते हैं? तो सुखबीर बादल जी सुखी बहुत हो चुके, तो अब इस फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में इस तरह की जो बयानबाजी जो कर रहे हैं हमें लगता है कि निंदनीय है। गुरुओं की एक महान परंपरा है और उसमें इस तरह की तुष्टीकरण की बातें करना और हमें लगता है बड़ा दुखदाई है। और निश्चित रूप से सत्ता से हटने के बाद सुखबीर जी दुखवीर जी हो चुके हैं, तो हमें लगता है उनको मानसिक अपनी इलाज कराने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो सत्य है वही रहेगा, सत्य है, सनातन है और देश
यहाँ पे तुष्टीकरण नहीं होगा। अब देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र होने वाला है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.